Good morning, dear students. We are going to discuss the very important topic of this chapter. In the last video, I have sent the Rolle's law. This is colligative properties. Colligative property means the properties of solution which depend only on the number of solute particles, but not on the nature of the solute. These are called the colligative properties. Colligative properties means solution का अंदर जो solute, when we add the non-volatile solute into the solvent, है ना, so we'll get the dilute solutions. So in which the solutions only they depend on the properties of the solution, that will depend on the number of solute particles which is added into it, isn't it? उसका अंदर जितना जो सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड किया है उसके नंबर को डिपेंड करते हैं. तो वो बोलते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूट का नेचर क्या है, और शुगर है, सॉल्ट है, ठीक है, सुक्रोस है, वट एवर मे बी द सोल्यूट है, उसका नेचर को डिपेंड नहीं करते. और द नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसका अंदर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट कितना डिजॉल्व हो गया सॉल्वेंट में, दैट इज़ द मैटर for the properties of the solution. So here we can see there are four main important colligative properties that are lowering of the relative lowering of vapor pressure. I will show it in a flow chart. ठीक है, look at here. So colligative property is there are four type of colligative properties. One is relative lowering of vapor pressure, another is elevation in boiling point, third one is depression in freezing point, एंड फोर्थ वन इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर. मैं एक क्विक रिविजन के लिए एक नोट्स बनाया because we already discussed this matter in the Google Meet. So those who are absent and those who are not understand the topic thoroughly, so you just go through this quick revision topic. So relative lowering of vapor pressure means when non-volatile solute is added to solvent. जब हमने non-volatile solute को, non-volatile means क्या है, that solute which will not readily convert into the vapor state, है ना, vapor state में जल्दी convert नहीं होते. अल्कोहल देख लो, एक volatile है, volatile solute means वो वेपर स्टेज में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इधर ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में हम जब ऐड करते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज डिक्रीजेस. ठीक है, वो वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, वो डिक्रीज हो जाते हैं. किसके कारण, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के कारण. ये हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था क्यों ये डिक्रीज हो जाते हैं. दैट विल सी हियर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. ठीक है, प्रीवियस क्लास when we were discussing about the Rolle's law of non-volatile solute. Here we can see that in pure solvent its vapor pressure will be more than the when it is in the solution state. ये pure solvent का अंदर अभी solute डाल दिया, ठीक है, so the vapor pressure will be decreased. ठीक है, so that only we are going to discuss here in the colligative property lowering of vapor pressure में. ठीक है, so vapor pressure क्या हो गया solution का, that will be decreases, ठीक है, than the vapor pressure of the solvent, that will be. So we can see here the vapor pressure of the solution decrease हो गया. Here प्योर सॉल्वेंट, जब हमने सॉल्वेंट प्योर स्टेट में होते उसका दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अगर अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, ठीक है, रोल्स लॉ क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द, दिस इज द रोल्स लॉ. टोटल प्रेशर मीन्स क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू कॉम्पोनेंट्स, है ना. इधर ये जो बी कॉम्पोनेंट्स मीन्स सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर जीरो है, वेपर प्रेशर नहीं बनते हैं ना, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल कॉम्पोनेंट है. तो हमने जो सोल्यूट डाला वो नॉन वोलेटाइल है. सो इधर का जो वेपर प्रेशर मीन्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा. सो पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए. तो पी ए मीन्स क्या है, दैट इज द सॉल्वेंट वेपर प्रेशर. सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मीन्स क्या होते हैं, प्योर स्टेट में जब होते हैं, ठीक है, दैट इज द रोल्स लॉ. द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट ए, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म. प्योर फॉर्म में जब वाटर जब प्योर स्टेट में होते हैं उसका पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, दैट इज द रोल्स लॉ, इजंट इट. सो वी विल अप्लाई दैट
lowering of vapor pressure here. Lowering of vapor pressure means क्या है, तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाते हैं ना, किसके कारण, सोल्यूट के कारण, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में से भी कम हो जाते हैं. सो डेल्टा पी मीन्स क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर. ठीक है, दैट इज मीन्स क्या है, लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस. सो P0A माइनस PA. ठीक है, P0A माइनस PA मीन्स क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट क्या होते हैं, दैट इज इन द व्हेन इट इज इन द प्योर स्टेट. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द pure solvent into mole fraction, isn't it? We put it that one here, and then you see P0 is common. ठीक है, the partial pressure of the solvent in pure state. ठीक है, into 1 माइनस एक्स है, क्योंकि हमने उसको ब्रैकेट का बाहर लिया है. सो डेल्टा PA मीन्स क्या होगा, डेल्टा PA इज इक्वल टू क्या होगा, P0A इंटू XB. ठीक है, XB मीन्स क्या मालूम है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट का मालूम. तो ये 1 माइनस एक्स से XB कैसे चेंज हो गया, ये आपको मालूम है. XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट हमेशा क्या होगा, 1 होगा. दैट इज ऑलरेडी वी हैव लर्न इन द +1 क्लास ऑल्सो. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द both the component when we add it is equal to 1. सो हमें अगर XB चाहिए तो 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए के जगह पे क्या डाल सकता, XB, isn't it? So we put it XB here. So delta PA by P0A is equal to XB. that means क्या है, that is the mole fraction of the B मीन्स क्या है, वो सोल्यूट. सो यही बोल रहा था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में. इधर देखो, according to colligative property the properties of the solution depends only on the number of solute. तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट को डिपेंड करते हैं लॉवरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर. दैट मीन्स वेपर प्रेशर डिक्रीज होते हैं, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, रिलेटिव लॉवरिंग प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. सो P0A माइनस PA इज इक्वल डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू XB, इजंट इट? सो हमने अभी XB मोल फ्रैक्शन के लिए क्या है, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ सोल्यूट चाहिए. तो उसके लिए आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन XB इज इक्वल टू क्या होगा, इधर मैंने लिखा नहीं है, आपको ये ऑलरेडी पता है. XB इज इक्वल टू क्या होगा, NP बाई NA प्लस NP होते हैं. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द B कॉम्पोनेंट, B मीन्स क्या, सोल्यूट, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इज वेरी 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 लेस दैन दी Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट. सो हमने मोल फ्रैक्शन को क्या ले सकता है, NB बाई Na. ठीक है, NB मीन्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कॉम्पोनेंट. NB इज इक्वल टू क्या होते हैं, W आपको मालूम है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अगर फाइंड आउट करना. ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई मोलार मास, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, इजंट इट? जो भी सोल्यूट आपको देते हैं उसका मोलार मास से डिवाइड कर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट मिल जाते हैं. तो अगर ऐसे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इधर क्या है, वाटर है ना, वाटर क्या कैसे, वेट ऑफ द वाटर और वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, सो वी विल पुट इट दिस वन हियर. सो हमें क्या मिल जाएगा, WB बाई WA, MB बाई MB, MA बाई MB. MA मीन्स क्या है, मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलार मास ऑफ द सोल्यूट. ये क्या है, गिवन मास. दैट मीन्स क्वेश्चन में गिवन होगा वेट. ठीक है, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, सो मोलार मास ऑफ द सोल्यूट हमें क्या चाहिए, मोलार मास ऑफ द सोल्यूट फाइंड आउट करना है ना. सो उसके लिए रिलेटिव लॉवरिंग प्रेशर यूज़ करके हम मोलार मास ऑफ द सोल्यूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, रिलेटिव लॉवरिंग प्रेशर क्या है, P0A माइनस PA बाई P0A. ठीक है, इज इक्वल टू XB. तो ये यूज़ करके हमने मोलार मास फाइंड आउट करना. तो क्या होगा, वी विल पुट इट दैट वन हियर. ठीक है, ये MB फाइंड आउट करना है, तो ये चीज़ को इस तरफ लेके आएगा ना. तो WB बाई WA MA डिवाइड बाई P0A माइनस PA बाई P0A. ये चीज़ क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा. MB कहाँ जाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो दैट विल राइट हियर. नेक्स्ट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या इंक्रीमेंट होएगा व्हेन वी ऐड द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब हमने सॉल्वेंट में डालने के समय बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस है, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्या है, टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब हमने कोई भी लिक्विड का, कोई भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मीन्स क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर
इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल होने के समय तक अगर वेपर प्रेशर प्रोड्यूस हो गया तो वो टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का जो है 1.013 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1.013 बार, ठीक है। इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वेपर प्रेशर अगर प्रोड्यूस करना है तो वाटर को कितना टेम्परेचर में बॉईल करना, 373 केल्विन। 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। हमने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से प्लस करते हैं तो 373 केल्विन आते हैं। दैट इज एलिवेशन और इंक्रीज इन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन दैन द सॉल्वेंट। हमें इधर देख सकता है कि एलिवेशन टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होएगा, इंक्रीज होएगा व्हेन वी ऐड द सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। तो हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में होते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, उसका अंदर ऑलरेडी सोल्यूट है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। सो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी। टी बी मीन्स क्या है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, टी बी 0। तो आप ग्राफिकली मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यू कैन सी दिस ग्राफ इन योर बुक, ठीक है। सो सी सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में है दैट मीन्स वाटर, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, x। फॉर एग्जाम्पल x, दैट मीन्स TB0, सॉरी x नहीं है, TB0 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन इट इज इन द प्योर स्टेट, ठीक है। सो व्हेन इट इज इन द प्योर स्टेट एट द टेम्परेचर TB0 इट प्रोड्यूस द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट x पॉइंट, ठीक है। x पॉइंट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। बट व्हेन वी ऐड द सोल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन का CD देख लो, उसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, TB हो गया ना। तो ये TB और TB0 मतलब TB नॉट बोलते हैं। TB नॉट मतलब क्या है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द that means the temperature at which the water or solvent, ठीक है, boils to produce 1 atmospheric pressure of the vapor pressure, ठीक है। और इधर हमने देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर TB नॉट आ गया, सॉल्वेंट प्योर स्टेट, TB मतलब क्या है, सॉल्यूशन, इसका अंदर क्या है, सोल्यूट भी है। तो ये ग्राफ में डिफरेंस आपने देखा, दैट इज द एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा TB मीन्स TB माइनस TB0। एक्सपेरिमेंटली क्या बोला है कि डेल्टा TB हमेशा क्या होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मीन्स क्या है, मोलालिटी हमने पढ़ा है 11th में। मोलालिटी मीन्स क्या है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, उसको मोलालिटी बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि कितना चेंजेस होते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, ठीक है। दैट मीन्स मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोलालिटी मीन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है डिवाइड बाई, for example molality is denoted by small m is equal to number of moles of the solute divided by, ये solute का है ना, divided by, ठीक है, weight of the solvent, WA मतलब क्या है, weight of the solvent in 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में तो हम क्या करेंगे, इंटू 1000 लिखते हैं, isn't it? सो हम इधर देख सकते हैं कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM है, m का जगह पे हमने क्या डाल दिया, n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना। मैंने आपको पहले भी बोला कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट है। तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इधर सोल्यूट ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। NB मतलब क्या होते हैं, NB इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी लिखा है WB बाई MB। WB मीन्स क्या है, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, इसको डिवाइड करेगा आपको NB मिल जाएगा। सो यू पुट दैट वन, W बाई MB इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सो आपको क्या मिल जाए, इधर KB जो है दैट मीन्स एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है इज यूजिंग टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन। या प्रोपोर्शनलिटी साइन को मोलार कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने रिमूव करने के लिए KB डाला, दैट KB इज द बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है।
1 मार्क्स में ऐसे पूछ सकते हैं। MB इक्वल टू, अगर हमने मोलार मास फाइंड आउट करना है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करके, तो MB इक्वल टू KB इंटू, जैसे ये इक्वेशन देखना, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू WA। दैट मीन्स क्या है, KB आपको मालूम है दैट कॉन्स्टेंट बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्स्टेंट इंटू वेट ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई चेंज इन एलिवेशन पॉइंट, है ना, एलिवेशन पॉइंट का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का वेट से डिवाइड करें तो आपको मोलार मास ऑफ द सोल्यूट मिल जाते हैं। सो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करके भी मोलार मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दैट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्टली यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट को डिपेंड करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड इज अ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स क्या है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट हैव अ सेम वेपर प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में क्या होगा, वेपर प्रेशर सेम होगा। व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, ठीक है, हमने अगर सॉल्वेंट का अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाल दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा, लेस दैन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। हम देखो, व्हेन वी ऐड द सोल्यूट, ठीक है, इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो है क्या होगा, PC, ठीक है, दैट विल बी द DB पहले फ्रोजन सॉल्वेंट है, जब वो लिक्विड सॉल्वेंट होएगा तो BC, ठीक है। तो फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का बीच में जो पॉइंट है दैट इज़ द प्योर स्टेट में जब सॉल्वेंट होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट TF0, ठीक है। जब हमने उसका अंदर सोल्यूट डाल दिया तो दैट मीन्स सोल्यूशन बन गया, ठीक है। देखिए सोल्यूशन का D पॉइंट में स्टार्ट है, दैट मीन्स हियर इट विल स्टार्ट टू फ्रीज, ठीक है। दैट मीन्स उसका लोअर होते हैं TF, ठीक है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, डेल्टा TF, ठीक है। डेल्टा TF मतलब क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लेस दैन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। डेल्टा TF ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, जो सेम है। आपको जब बेटा इधर KB का जगह पे KF आएगा, बाकी सारा इक्वेशन सेम ही होते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपने जब एलिवेशन और डिप्रेशन का पढ़ने के समय इक्वेशन सेम है। डेल्टा जैसे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का जगह पे इधर फ्रीजिंग पॉइंट आएगा बस, ठीक है। इधर TB है बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट TF है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया, डिक्रीज हो गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो गया जब व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बाय यूजिंग दिस ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखना, द एक्सेस प्रेशर अप्लाई टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू टू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल सी, इसका अंदर सॉल्यूशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, इतना ही है बस। जब हमने इसके एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स इट अलाउज द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू गो इनसाइड द थिसल फनल। ये थिसल फनल का नीचे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखे, वी विल जस्ट इमर्स्ड इनटू द वाटर, ठीक है, वाटर में हमने इमर्स करके रख दिया। थोड़ी देर के बाद हम देख सकते हैं कि दिस वाटर विल फ्लो इनटू, वाटर मीन्स क्या है, सॉल्वेंट है, दैट विल फ्लो इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अंदर फ्लो हो जाते हैं, कब तक फ्लो हो जाएगा, जब तक इसका अंदर से एक ऑस्मोटिक प्रेशर और वापस में एक प्रेशर, ठीक है, जब तक नहीं आएगा तब तक ये फ्लो होते रहेगा। दैट मीन्स दैट सॉल्यूशन हैज़ टू अप्लाई सम प्रेशर, ठीक है, और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन ओनली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो स्टॉप होएगा। तो ये ऑस्मोसिस मीन्स क्या होती है, दैट मीन्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, ये ऑस्मोसिस, ठीक है। जो सॉल्वेंट जो है कॉन्सेंट्रेशन इधर से कम है, वहाँ से लो हायर कॉन्सेंट्रेशन में जो जा रहे हैं, ठीक है, उसको हमने ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो अभी इधर बोल दिए एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई होएगा सॉल्यूशन में, तो तब जाके ये प्योर सॉल्वेंट को अभी हमने प्रिवेंट कर सकता अंदर जाने से, ठीक है। एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो सॉल्वेंट को पास होने से रोकने के लिए एक एक्सेस प्रेशर अप्लाई करना पड़ते हैं, ठीक है।
तो उसको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड, जो वान हॉफ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। सो ही ऑब्जर्व दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन एज ए पाई इज इक्वल टू CRT। दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन। मोलार कॉन्सेंट्रेशन मीन्स इधर C जो यूज़ किया और मोलारिटी है, ठीक है, पाई CRT, ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT। वान हॉफ इक्वेशन है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वान हॉफ इक्वेशन, ऑल द इक्वेशंस आर important. We will apply this equation to do the numericals also. In this video I am just explaining the topic only. Numericals I will do it later on, ठीक है। सो वान हॉफ इक्वेशन क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। C इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलारिटी, ठीक है। इधर हमने मोलारिटी था, ये मोलारिटी। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, है ना, N/V। ये भी हमने कैपिटल M बोला था मोलारिटी के लिए, बट अभी वान हॉफ के इक्वेशन में वो C यूज़ किया, इसलिए हमने C यूज़ करेगा। दैट इक्वेशन इज इक्वल टू दी मोलारिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ए लीटर, ठीक है। तो हमने वो पुटअप कर दिया, पाई इज इक्वल टू N/V/RT। तो अगर मोलार मास फाइंड आउट करना है तो N का जगह पे क्या डालना है आपको मालूम है, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई volume of the weight of the solute divided by volume of the मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। मोलार मास ऑफ द सोल्यूट क्या हो गया, इधर ऊपर चले गया क्योंकि हमने मोलार मास ऑफ द सोल्यूट फाइंड आउट करना है, तो पाई नीचे आ जाएगा, तो WB/RT by V पाई। दिस इज द इक्वेशन विच वी कैन यूज टू फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ द सोल्यूट बाय यूजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आवर लास्ट टॉपिक इज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दिस हेल्प अस टू कैलकुलेट द मोलार मास। हमने पहले भी बोला है ना, तो ये मोलार मास को कैलकुलेट करने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारा हेल्प करते हैं। हमने जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया, वो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो हेल्प यू टू कैलकुलेट द मोलार मास। बट हमने देखना है अगर आप नॉर्मल मोलार मास, दैट मीन्स क्या है, ये मोलार मास हमेशा इक्वल नहीं होते, क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकलते हैं उसको थियोरेटिकल वैल्यू बोलते हैं। दैट विल बी ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थियोरेटिकल वैल्यू। हमने जो कैलकुलेट करते हो थियोरेटिकल वैल्यू होता है, तो थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विल बी ऑलवेज डिफरेंट, ठीक है। वो एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि वो बोल रही है कि आप नॉर्मल मोलार मास इसलिए आते इफ़ अगर करेक्ट एक्यूरेट मिलना है, ठीक है, ये कंडीशंस फॉलो होना है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, जो भी हमने मोलार मास फाइंड आउट किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके, वो अब नॉर्मल मोलार मास होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो किया तो क्या होगा, हमें जो मोलार मास मिलेगा वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। सो कंडीशन फॉर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलार मास, तो what are the conditions which needs to follow to get the accurate value of molar mass? Solution should be dilute. Solution क्या होना चाहिए, dilute होना चाहिए, बहुत ज़्यादा dilute होना चाहिए। और second, solute must not dissociate or associate in a solution. Solution का अंदर ये solute जो है कभी associate और dissociate नहीं होना चाहिए। Association मतलब क्या है, देखो पोटाशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, वो फॉरवर्ड अभी 2 RO दिखाया, फॉरवर्ड रिएक्शन को हाफ RO, बैकवर्ड रिएक्शन हाफ RO, ये डबल RO बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, एक सोल्यूट को, ये KCl को मैंने अगर वाटर में डाल दिया, KCl को हमने, KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। व्हेन वी पुट इन द सॉल्वेंट, हमने इसको सॉल्वेंट में डाल दिया, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है। वाटर में डालने के समय ये आयोनाइज हो जाते हैं, विच विल आयोनाइज K+ एंड Cl-, ठीक है। ये आयोनाइज होने के टाइम उसको हमने डिसोसिएशन बोलते हैं। जब ये आयोन्स क्या कर सकता, समटाइम्स इट कैन ऑल्सो कंबाइन एंड फॉर्म दी KCl, सो उसको एसोसिएशन बोलते हैं। दैट मीन्स अगर ये सोल्यूट, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन के अंदर हो रहे ऐसे प्रोसेस हो रहे, तो मोलार मास क्या होगा, कैलकुलेट करेगा तो वो
abnormal होगा, that will not be a correct value, that will be a abnormal value. उसके लिए एक वान गॉफ फैक्टर, एक वान गॉफ साइंटिस्ट के बारे में हमने पहले ऑस्मोटिक प्रेशर में डिस्कस किया था. उन्होंने एक वान गॉफ फैक्टर यूज़ किया, दैट इज आई फैक्टर आई, ठीक है, टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन. कितना एसोसिएशन का जो लिमिट और है, कितना डिसोसिएशन और है, उसके लिए सोल्यूट का एसोसिएटेड डिसोसिएशन के लिए उन्होंने एक दैट एक्सटेंट को, ठीक है, एक कितना तक हो रहे करके एक्सप्रेस करने के लिए एक फैक्टर यूज़ किया आई इक्वल टू नॉर्मल मोलार मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलार मास. नॉर्मल मोलार मास मतलब क्या है, जो हमने कैलकुलेट करके मिलते हैं. ऑब्जर्व्ड मतलब जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो मिला उसको डिवाइड करेगा तो हमें आई मिल जाते हैं. दैट मीन्स दैट विल बी द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या फाइंड आउट करना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाई अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई एम माइनस वन. एम मीन्स क्या है, कितना जो मोल्स है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है उसका अंदर जो है डिजॉल्व हो गया, एम माइनस वन. सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन. सो बोलते हैं कि ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसके साथ अगर हमने आई फैक्टर जो वान गॉफ का फैक्टर अगर हमने यूज़ किया, देखिए रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर डेल्टा पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू आई एक्स, आई डाल दिया ना, आई कई भी बोलते हैं, कई सोल्यूट, दैट मीन्स सोल्यूट का जो है मोल फ्रैक्शन के साथ अगर हमने वान ऑफ फैक्टर डाल दिया तो यू विल गेट ए करेक्ट वैल्यू. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीपी में भी आई डाल दिया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में भी आई डाल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी आई डाल दिया, तो दे आर सेइंग दैट यू विल गेट ए करेक्ट वैल्यू ऑफ द मोलार मास. सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. सो वील हैव सम न्यूमेरिकल्स दैट विल आई सेंड इट इन ए next video. Okay, thank you, beta.